Good evening, everyone. So today would be the session one of the art and culture, and in this we would be taking the NCRT. Okay, so the basic NCRT would be taken up, and initial three chapters would be covered up in the first session. Okay, so let us begin now. And also we have done a bit. So what we will do, we'll be just skimming through those things first, and then we will move to the today's agenda. Okay, so here comes the first question. Where do you find the Lakhudiai caves? Uttarakhand. And on which river? It is on Suryal River. Okay, correct. So for the first time, earliest painting was found in which time? Upper Paleolithic age. Yeah, that was Upper Paleolithic, and most of the paintings are found in which time? In Mesolithic age. That is great. Okay, so first discovery of rock painting in India was done around 1867 to 68, and the archaeologist of that time was the Archibald Carlyle. Okay, so there are some of the remnants of the rock paintings which are found in India on the walls of the different caves. So anyone can tell some of the states where you can find these paintings in abundant. Telangana, Andhra Pradesh. Along with the Madhya Pradesh, UP, Karnataka, in all these states, we found the paintings on the wall of the caves. Okay, so Lakhudiya we have discussed, and it is in the Uttarakhand on the river banks of the Soyal. So Lakhudiya means like there are lack of the caves there, and they were divided into the three categories. Okay. So chalcedony and hematite were the source of which colors? Hematite is for red and chalcedony is for green. Yes, and limestone for white color. Where are the Vindhya ranges located? Madhya Pradesh. Okay, so now can anyone tell me there were seals found in the Harappan period? So on those seals, which animals were there? Buffalo, rhinoceros, elephant, tiger, antelope. Okay, that is correct. And where is the location of Harappa and Mohenjo-daro? Pakistan. Daimabad is in Pakistan. True, false? False. Which state? Maharashtra. What was the lost wax technique?
So lost wax technique was related to the bronze casting. Okay, this was a technique which helped to make the sculpture and idols in precision. What is the position of lady dancing which we found from the Mohenjo-daro? She is in Tribhanga position. Do anyone know what is Tribhanga position? Tribhanga position, the body is bent from like on three angles, and then from three parts. Okay, that is correct. Okay, I will be speaking the sites. You just need to tell in which state it is located. Okay, so first is Lothal, Gujarat, Ropar, Punjab, Punjab, okay, Kalibanga, Rajasthan, Balathal, Rajasthan, Rakhigadi. Haryana, Last is Dholavira. Gujarat. Gujarat. Okay, perfect. What is the like? How can you define the male torso? Like उसमें कौन सा जो what we can say element कौन सा use हुआ था male torso में? Red sandstone, Perfect. And what was the material of the bearded man? stay tight. Nice. Okay, so we found human figurine and bull figurine. So those were found from which state or which site, if you can tell? Bull figurine was there. Kalibangan. That was found from the Kalibangan. Okay, so Kalibangan is it? We just discussed it. Rajasthan. Rajasthan. And anyone can tell me कौन सी river थी जिस पे कालीबंगन है? Kakkar River, Correct. Okay, so there was a copper dog and bird which we found. इसकी site लोथल है, ठीक है? Now comes the question कि लोथल is in which state? Gujarat. Okay, that is nice. What was the use of seals? जो seals हमने मिले थे वहां से IBC साइट से, उस seal का use क्या क्या होता था and वो किस चीज की बनी होती थी and कौन से साइट से सबसे ज्यादा seals मिली है? There are 3-4 questions. Try to answer. बेसिकली ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए थी एंड शायद से पहनते भी थे क्या गले में, इफ आई एम नॉट स्टे टाइट की होती थी एंड पशुपति सील इज वेरी फेमस. तो लोथल पे आई गेस ज़्यादा मिली होंगी बिकॉज वो पोर्ट सिटी है तो ट्रेडिंग का ज़्यादा एविडेंस होगा वहाँ पे. Okay, though first answer you answered very nice, but वो वाला point गलत है कि लोथल में सबसे ज्यादा मिली होंगी. Anyone else if can answer कि कहाँ पे सबसे ज्यादा seals मिली होंगी? Yes, मोहनजोदारो. उसमें एक पशुपति सील भी इम्पोर्टेंट था और एक यूनिकॉर्न भी था उनका इम्पोर्टेंट. Yes, and जो पशुपति सील था उस पे कौन कौन से एनिमल्स थे? हाँ, इसका बार्टर ट्रिक है. बफलो, एंटीलोप, राइनो, टाइगर, एलिफेंट. Nice. Okay, now let us discuss something about pottery. Like कौन कौन सी potteries वहां पे थी and like कौन कौन से material से वो बनी होती थी? Can anyone? मिट्टी की होती थी, मतलब रेड क्ले, परफोरेटेड
थोड़े उसमें मतलब होल्स रहते थे। हाँ, जो परफोरेटेड है वो उसमें क्या होता था कि वो छानने के लिए कुछ यूज होती थी, जैसे वो बियर या कुछ भी बनाते थे तो वो होल में से तो पानी निकल जाता था, जो उनका मैटर है वो सब उसके अंदर रह जाता। तो परफोरेटेड एक वो टाइप का वेसल था छानने के लिए। Okay, so I will be speaking one statement, right? Try कि वो गलत है कि सही है, ठीक है? So the statement is painted ware potteries were more common than the plain pottery. Means painted वाली ज़्यादा use होती थी rather than the plain वाली. फॉल्स। फॉल्स है। Yeah, it is false. Actually में जो plain pottery थी that was more commonly used by the people of Harappan civilization. Okay. And also polychrome paintings भी होती थी, sorry potteries होती थी polychrome. तो polychrome पे क्या होता है थोड़ा सा ना like जो वास होता है वो उनका डेकोरेट होता है, ठीक है? दो वो बहुत कम यूज में आती थी बट स्टिल लाइक पॉलीक्रोम पेंट पॉटरी जो थी वो उसमें जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड ऑल होता है वो बहुत ज्यादा बने होते हैं, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. देन आफ्टर दैट वेज फैमाना, FARMANA, फैमाना. हरियाणा। हरियाणा। फेमस. वो वहाँ पे जो डेड बॉडीज थी उन पे वो उनके डेकोरेटिव जो आइटम्स थे वो मिले थे। ऑर्नामेंट्स भी मिले थे उनके साथ। हाँ, यस यस, डेड बॉडीज को जब ब्यूरी किया गया था तो उसके साथ ऑर्नामेंट्स वहां पे मिले थे एंड दैट इज लोकेटेड इन हरियाणा. ओके, सो व्हाट वर द ऑर्नामेंट्स ऑफ दैट टाइम विच वर लाइक वॉर बाय बोथ वीमेन एंड मेल, लाइक दोनों जो पहनते थे कॉमन वाले, आई एम आस्किंग. नेकलेस था और रिंग्स थी। एंड ऑल्सो कुछ आर्मलेट्स. हाँ, एंकलेट्स। Okay. Okay, one statement again here. So just try कि वो गलत है कि सही है, ठीक है? So statement is girdles, earrings and anklets were only worn by women. True or false? फॉल्स। फॉल्स है। Actually, this statement is true. ठीक है, हड़प्पा टाइम में ना लाइक दो थोड़ा अजीब सा लगता है ये स्टेटमेंट कि इज इट पॉसिबल कि रिंग्स नहीं थे या सॉरी रिंग्स क्या, इयर रिंग्स, ठीक है? तो इयर रिंग्स नहीं पहनते थे मेल, ठीक है? ओनली वीमेन यूज टू वियर ग्रिडल्स, इयर रिंग्स, एंकलेट्स, ठीक है? तो ग्रिडल इज समथिंग विच यू वियर ऑन योर वेस्ट एंड लाइक एंकलेट्स विच इज वॉर ऑन द एंकल एंड इयर रिंग्स, ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर ये तीन चीजें ओनली वीमेन यूज टू ड्रेस अप. Okay. What was the use of cinnabar as CINNABAR? Cinnabar. पाउडर लगाने के लिए। हाँ, वो काजल की तरह यूज करते थे उसे। Okay, and callium was also there. That was like used as a eyeliner. Okay. So we are done with 2 chapters. Now let us move to 3rd chapter. Okay, so first of all, let us discuss a bit about Mahajanpads. Okay, how many Mahajanpads were there? 16. Okay, and then like there started disintegration, and later on, many of them declined, and like most of them were not there till the last time. And among them, this Magad was the most powerful kingdom, and it emerged as a like most important and like proficient power of the North India. सो उसमें जो मगध था, मगध वॉज लाइक अराउंड 4th BCE सेंचुरी में मौर्यज ने अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया था. सो वी डिस्कस समथिंग अबाउट लाइक वहां पे जो सारनाथ पिलर्स थे, ठीक है? उसके बाद वी हैव द यक्ष यक्षिणीज एंड ऑल दोज आर्ट कल्चर वी विल डिस्कस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द पिलर. पिलर के अंदर 4 चीजें होती है, ठीक है? कैन एनीवन अरेंज इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? लाइक इफ आई से कि यू हैव टू अरेंज एबेकस, बेल, shaft and capital. So how will you arrange them in north to south like order? I think abacus कैपिटल सबसे ऊपर होगा, फिर उस पे abacus एंड बाकी दो क्या था? Bull and shaft.
ओके सी शाफ्ट जो होता है उस पे इंटायर प्रीमाइसिस खड़ा होता है, तो ऑब्वियसली शाफ्ट सबसे नीचे होगा, ठीक है। आपने सभी ने देखा होगा ना कैपिटल दिखता कैसा है, वो जो सारनाथ वाला पिल्लर कैपिटल है वो दिखता कैसा है, एक बार उसकी पिक्चर देख लेना, ठीक है। सो हाउ कैन यू रिमेंबर इस कैब, ठीक है। यू हैव बुक्ड अ कैब टू विजिट द सारनाथ, ठीक है। तो कैब्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, देन एबेकस, देन बुल एंड देन शाफ्ट। कूल। ओके। Okay, so tell me one thing. What is the difference between viharas and chaityas? Viharas were for residential purposes of travelers, especially monks, और चैत्यास worshipping के लिए थे, चैत्य halls. Very good. Okay, so जो टॉप पोर्शन था पिलर का, उस टॉप पोर्शन पे कुछ वो थे, एनिमल्स थे। कैन एनीवन टेल मी कि उस पिलर के पोर्शन पे कौन एनिमल थे? सारनाथ वाले पे आई एम आस्किंग। भेल, bull, horse, elephant and lion. Very good. Okay, awesome. So remember, BHEL is the you can remember by that. एंड ठीक है, प्लीज याद रखना। एंड एक रामपुरवा बुल मिला था उस पे, इफ कैन एनीवन टेल मी कि रामपुरवा जो पिलर था उस पे कौन सा एनिमल था? देयर वाज ओनली सिंगल एनिमल डिपिक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर रामपुरवा पिलर। I think bull was there. ग्रेट, सो दैट वाज बुल। ओके, एंड संकीसा पिलर पे कौन सा है? Not sure. Elephant. Okay, so let us go through them again. First was Sarnath. Sarnath पे 4 है, as she said amiable कि there are 4. First is bull, then horse, then lion, and then elephant. Okay, then Rampurva पे only bull is there, and next one was Sankisa pillar. Sankisa pillar पे सिर्फ elephant है. Okay. Rampurva is in which state? Bihar. Sankisa? Sankisa is also, I think, in Bihar. Though I'm not sure of Sankisa, but I think it is also in Bihar. Sankisa, I have not heard of Bihar. I think it might be in UP, I think. Rampurva is in Bihar, but Sankisa, I'm not sure. Sankisa is in UP. Okay, thanks for the correction. Now, please एक बार check भी कर लेना, okay? अगर final यही है तो I was not sure, but yeah, like Sankisa में elephant है, ठीक है? Okay, shall we move ahead? Sure. Yes. So can anyone tell me यक्ष यक्षिणी जो होते हैं, what are they like? क्या represent क्या करते हैं यक्ष यक्षिणी? वो मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए गार्ड की तरह एक वो बनाए जाते थे गेट्स पे। अगर टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे एक द्रविडियन में तो गार्ड्स की तरह हैं, वरना आई गेस यक्ष यक्षिणी मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह भी ट्रीट करते थे, फॉर्म ऑफ गॉड। They particular act as a god of soil, right? Yeah, like those are the preserver of the resources, be it on the gate or be it on the like soil or sand, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जैसे अर्थ को प्रिजर्व करना है, रिसोर्सेज जो आपके पास है, यू हैव टू प्रिजर्व देम, ठीक है। सो एक टॉपिक हमने पीछे मिस किया, लेट अस गो थ्रू दैट। जो पिलर कैपिटल था वो सिंबलाइज क्या करता है? बुद्धा के कौन से लाइफ के फेज को डिपिक्ट करता है सारनाथ पिलर? ये चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। यक्ष यक्षिणी 2-3 जगह मिले हैं, मतलब उनके स्टेचूज। कैन एनीवन टेल मी क्या क्या, मतलब लोकेशंस क्या क्या हैं, कुछ याद हो तो? बिहार में है, और एक जो फ्लाइंग विस्क वाला है वो है। फ्लाइंग विस्क वाला ही बिहार में है, और हाँ, बाकी उसका तो नाम क्या इंडस है? वैली सिविलाइजेशन में भी फाउंड हुआ था मोहनजोदड़ो में। यस यस, फ्लाइंग विस्क वाले का नाम बताओ कोई। फ्लाई विस्क वाला यक्षिणी ही तो नाम है उसका। दीदारगंज। अच्छा, दीदारगंज। होते तो सभी यक्ष यक्षिणी है, बट जैसे दीदारगंज हो गया, ठीक है। एंड जब आप
एंड जब गुप्ता वाला होगा ना तो गुप्ताज में नाम आता है वो वाला सुल्तानगंज, ठीक है। तो सुल्तानगंज में भी यक्षिणी है। बस डिफरेंस क्या है, वो लोकेशन का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे दीदारगंज वाला है तो उसको दीदारगंज वाली यक्षिणी बोल देते हैं, एंड वो वाली, ठीक है। एक मणिभद्र वाली भी है, सो दैट इज ऑल्सो यक्षिणी, ओके। तो दीदारगंज वाली शायद मौर्य टाइम की है। यस, दीदारगंज मौर्यस की है एंड सुल्तानगंज बिलोंग्स टू गुप्ता टाइम। और एक यक्ष भी मिला है, तो यक्ष पटना ही से मिला है, यक्ष भी है एक। ओके ओके, कैन एनीवन टेल मी कौन सी सबसे ओल्डेस्ट केव है? बाघ केव्स, बिहार वाली है, बी से। मौर्यन टाइम की अगर केव की बात है तो मौर्यन टाइम में बराबर केव्स था जो अशोक ने फाउंड किया था, बराबर। और एंड उसी ब्राबर के आसपास है ओल्डेस्ट, लोमस ऋषि ब्राबर जो है और वो सबसे 2-3 ओल्डेस्ट। सी। ब्राबर को ही एक्चुअली में लोमस ऋषि बोलते हैं ना, क्योंकि वो उसके पास, मतलब वो पास में क्या, जैसे ब्राबर हिल्स पे वो केव है लोमस ऋषि की। नहीं नहीं, वहां पे लोमस चार ऋषि ही, केव्स, चार। लोमस ऋषि केव्स बोलते हैं उन्हें, वो तो बराबर हिल्स पे है। बराबर है, लोमस ऋषि है, कर्ण चौपाल है और सुदामा है, 4। व्हाट आई एम सेइंग इज जो ब्राबर हिल है उनमें सभी केव है। दिस इज व्हाट आई एम, जो ब्राबर की हिल्स है ना बिहार हाँ में। हाँ। यस। कौन से सेक्ट के लिए डिवोटेड थी ये केव्स? आजीविका सेक्ट। एंड व्हाट इज आजीविका सेक्ट? ये जो अशोक ने बनाया था आजीविका सेक्ट, मतलब उसको उन्होंने उसमें लोमस ऋषि केव्स को उसमें डोनेट कर दिया था। आजीविका सेक्ट वो मकाली घोषाल ने बनाया था, कंटेम्पररी जो थे बुद्धा के। यस, एंड दैट इज बट ऑल्सो क्वेश्चन ये भी है कि अशोक तो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, तो वो आजीविका को क्यों दिया फिर? यस, एंड जो आजीविका है उसका प्रीमाइसिस भी बुद्धा जैन की तरह सेम है, श्रमना कॉन्सेप्ट, ओके। Bharat stupa is in which state? Rajasthan. Okay, correct. Now let us discuss some of the events of the Buddha life. Can anyone tell me sequence में कि कौन सा पहला life का phase था, then second, third, fourth, fifth, like so on? सबसे आखिरी The धम्म चक्र, सबसे उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और उसके पहले है धम्म चक्र प्रवर्तन। एंड फिर वो फर्स्ट तो वही होगा ना जो 4 लोगों को देखा था उन्होंने, उसका नाम नहीं पता है। okay, birth कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। हाँ, Next was renunciation, ठीक है, renunciation। उसके बाद आता है enlightenment। enlightenment कहाँ पे हुआ था? बोध गया। महाबोधि। एंड कहाँ दिया था अपना? सारनाथ। Okay. Okay, so we have completed 3 chapters. Okay, now if anyone want to ask any questions, you can carry on. We have 10 minutes, and then after that, there will be break of 10 minutes, and we will be starting with the next 3 chapters. Okay, so now you can ask the questions. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब एनसीईआरटी का ही है।
Do you think that the art of making sculptures in India began during the Mauryan period? True or false? उससे पहले भी देखे गए थे, इन द वैदिक पीरियड में भी उन्होंने आर्ट बनाना शुरू किया था जब। उसके बाद गुप्ताज में भी आए थे, उसके बाद मौर्यंस में आए, अशोकन के टाइम पे ज्यादा आना शुरू हुए थे। हाँ मतलब बिगन हुए थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहां से स्कल्पचर्स बनने शुरू हो गए थे, वो जो हमने देखे थे ना बियर्डेड मैन और वो सब। हाँ करेक्ट। एक मैं पूछती हूँ यहाँ पे, कहीं एक जगह है जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में जो भी आर्टिसंस थे उनका नाम है, तो ये कोई बताएगा कहाँ पे है? रामप्पा टेम्पल महाराष्ट्र के पास है ना वो। दो कान्हा एक करके नाम हाँ थे आर्टिशियन, उनका था, और एक दो और थे। हाँ, कान्हा का है एट पित्तल खोड़ा एंड हिज डिसाइपल बालक एट कोंडेन केव्स इन महाराष्ट्र। रिपीट करना तो फिर से। हाँ, कान्हा का पित्तल खोड़ा में एंड हिज डिसाइपल बालक एट कोंडेन या कोंडानी जो भी है केव्स इन महाराष्ट्र। ओके ओके, थैंक यू। ओके तो जो पिलर्स थे वो मतलब वही क्वेश्चन है कि जो पिलर्स फॉर्मेशन थी वो मौर्यंस ने शुरू की थी। ट्रू और फॉल्स? मौर्यंस ने, आई थिंक ट्रू। हाँ मतलब उनके ही वो, उससे पहले मतलब एक आर्किमेनियन एम्पायर था, वहां भी बन रहे थे, लेकिन जो मौर्यंस ने शुरू किया था वो उससे थोड़ा सा अलग था। अगर वो अलग था तो वो कैसे था वो भी बता दो। मौर्यन वाला ज्यादा पॉलिश, आई थिंक ऐसा कुछ, हाईली पॉलिश्ड। वो और पॉलिश मोनोलिथिक भी इसमें था एंड और इसमें साथ एक में ही क्या था सिंगल ना, स्लैब यूज होता है, ऐसा कुछ यस था, यस, और सिंगल वहां वाले में मौर्यंस का पीसेस सिंगल यूज होते थे। मोनोलिथिक था। यहाँ वाले में सिंगल मोनोलिथिक है, बट जो आर्किमेनियन वाला है, ईरान वाला है, वहां पे पीसेस में होता था। प्लस जो इंडिया वाला है मतलब मौर्य, वो शायद इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है, बट आर्किमेनियन में चाहिए होता था, उसके ऊपर उसे लाइक अटैच किया जाता था। हाँ वो मतलब बिल्डिंग्स में जो उनके पिलर्स थे वो मेनली बिल्डिंग्स में यूज होते थे आर्किमेनियन में, तो मौर्यंस एक सिंगल पिलर बनाते थे, मतलब उसके ऊपर कुछ लेंटर या कुछ भी नहीं होता था। एक ट्रू और फॉल्स पूछ रही हूँ। द ग्रेट स्तूपा एट सांची वाज मेड विद स्टोन एंड वाज अर्लियर कवर्ड विद लेटर कवर्ड विद ब्रिक्स। फॉल्स। सैंडस्टोन था एक्चुअली पहले पीरियड के टाइम ब्रिक्स पे। से था, हाँ पहले पहले ब्रिक था, बाद में स्टोन यूज हुआ था। हाँ। Karthik, kindly please mute yourself, and when you speak the answer, please then only please unmute yourself. वरना बहुत ज्यादा इको होता है, कुछ समझ नहीं आता। Please mute yourself. एक पेंटेड अर्थन जार था फेमस, वो कहाँ मिला था? हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में मिला हो। हाँ मोहनजोदाड़ो। हाँ करेक्ट। एनसीईआरटी में डांसिंग गर्ल है, ये कॉपर की है या ब्रॉन्ज की है? ब्रॉन्ज की। ओके, एक्चुअली पेज नंबर 16 पे यहाँ पे कॉपर लिखा है, हाई कॉपर फिगर, लेकिन लास्ट में ब्रॉन्ज लिखा है वैसे ब्रॉन्ज ना? नहीं, कहीं कहीं अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियरली यही लिखा हुआ है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, किसी किसी में, लाइक तमिलनाडु वगैरह में ना सीधा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये लिखा हुआ है।
हेलो वैसे मेरे गाइस, ख्याल से 3 पेज पे फिर गलत लिख गया होगा। यही था ना कि ना बार बार जो रिपीट हो रहा था उस वजह से भी मे बी पहले कुछ और बोला गया होगा, बाद में कुछ और बोला गया होगा। ओके ओके। उसका भी तो यही था कि पहली साइट जो पाई गई थी फिर वो हड़प्पा हो गई, फिर बाद में इंडस हो गई, ये इस अकॉर्डिंग ही तो चेंज हुआ है ना, तो हम उसको सबको तो सेम ही बोलते हैं ना इनडायरेक्टली। मे बी इस वजह से भी हो सकता है। ओके। इंडस वैली के टाइम में टेम्पल वगैरह होते थे या नहीं होते थे? नहीं होते थे, नो टेम्पल्स परफॉर्म। क्या होता था इन लोगों का, मतलब रिलीजन में पर्सपेक्टिव क्या था? मतलब लाइक नेचर वो प्लांट को या एनिमल है ना उसी को वर्शिप करते थे, लाइक पीपल कट हुई होता है जैसे आज तुलसी वाला जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल वो उस वर्शिप थी ज्यादा। या Palace worship एटमिज्म होता ना। था। मतलब अगर यहाँ पे शो का ऑप्शनल का स्टूडेंट होगा तो टोटेम वाज द कॉन्सेप्ट, एक्चुअली आईबीसी का कॉन्सेप्ट है वो टोटेम वाला था, द काइंड। अच्छा हाँ, जिसमें वो मतलब हेलो कुल वगैरह कुला समथिंग जो होता है। गाइस, इज दिस कॉन्वर्सेशन won't be in English or no? In whatever language you are comfortable, bro, you can speak. No, bro, I can't understand what you guys are speaking because I don't know Hindi. That's what the problem is. That's what. If you Okay. guys carry on with English, I will be there. Otherwise, I won't because I don't understand anything. That's what. Okay. Okay, I'll ask a question. मतलब वो आर्टिफिशियल केव्स बताना आपको. What who are the artificial caves? The Lomas Rishi caves और 1 minute. Lomas Rishi caves, Bhimbetka caves और I think Lomas Rishi cave is artificial, man-made. Bhimbetka is natural. का तो नेचुरल है। Why Bhimbetka cave is called as Bhimbetka? In the context of Mahabharata, Bhim did something here. I mean, some fight related. Please repeat again. In the context of Mahabharata, I mean, Bhim had done something here. I know. Yeah. It is considered that Bhim has seated once there, so that is why it is called as Bhimbetka. मतलब Bhim might have seated there. So. Yeah, in North we use a bathaka, like a hall where you sit. Maybe that's why. Yeah, exactly. ये जातका स्टोरीज स्तूपा के किस स्ट्रक्चर पे होती हैं? गेटवेज पे होती है ना। वेदिकाज पे भी. I have a request. Can we just keep the discussion in English? Means if anyone don't have any issues, like जब तक possible हो, please keep it in English. Isn't it? Like many are texting me in DM that the things are going in Hindi and they don't understand it actually. That is the only issue. Like for a good cause and a big cause, we can go for English, isn't it? Okay. Have you heard about torans? Can somebody explain what a toran is in a stupa? Toran is the gate only. Toranas or torans. Even these torans have some kind of pictures, like some lady holding branches of a tree. What is that called? It's called Shalbhanjikas. Okay, So thank you. since we're talking about stupa, can somebody tell me about the structures of stupa, like anda, chhatri, ये सब? There is one Torans and there
it is surrounded by some walls, and there is circumambulatory path, means a way to where you can also rotate around it. And Chatrika, Harmika, Andika, क्या वो Anda is the shape of that stupa, hemisphere shape, and Yashti and Chatrika are on the top of it, and these are few things. Correct. You mentioned everything. One more thing can be added, that is production path. Production, I think you also added that also. That is circumambulatory path. That is Paridakshina path. Okay. Okay, so I think now we are moving to chapter 4 now. So let us take a break for 5 minutes and we will assemble at 5:45, and for the first 3 chapters we have completed it. Okay, so shall we meet after 5 minutes? Okay, sure. Okay, ma'am. Okay, so thanks everyone for joining the discussion, and who are watching it on YouTube, please go through the playlist. It might help you in prelims 2022, and we will be meeting at 5:45 now after 5 minutes. Thanks a lot.